So, was everyone present in the orientation class? So, there we discussed how to write an answer. So, just to talk about it briefly, I will not go into the complete details because we have already had a session about it. We will talk about some important facts that we discussed. We need to write an introduction for around 3 lines, not more than that. Then we will discuss the body part. Here we discussed how if there is a possibility of making a map or any graphics that you should make. That is one thing that we discussed. You can put it this way. Okay. Then we talked about writing a proper conclusion. A conclusion should be there again 2 to 2.5 lines. This is something we discussed. We also discussed when you are writing the body part, if there are 2 aspects which have been asked, you have to pay proper attention to both the parts, or if 3 parts are there, you have to pay proper attention to all the 3 parts. Another thing that we talked about was that if there is a possibility of writing an example, that is something that you should surely include. And when you are writing that, we talked about this fact that you have to make it visible. So write it from here, try to underline it. So these are some of the basic things that we have already discussed. Today what we are going to do, we are going to look at the questions of test 1 and we will discuss the answer. What are the things that should be included? Okay. So you already have the model answer with you. Okay. So I am going to tell you what are the things which you have to write and how you have to highlight it. Okay. So if we are looking at the first question, give a brief account of architecture, poetry, literature, painting and music style flourished during Mughal period. It is for 10 marks, 150 words. So they are, first it has been asked for 10 marks. So you should be clear that you have to be very brief about it, very concise about it. They have already written in the question that you have to give a brief account of the what? Architecture, poetry, literature, painting and music styles. There are already 5 aspects. So when you are writing the introduction, you can talk about the cultural syncretism present in Mughal culture. So if you are using the term culture, that is going to comprise architecture, poetry, literature, painting and music, every aspect of that. Okay. So in that way, by using key terms, you can make your introduction more witty and you can you are inculcating all the aspects without even writing everything. So it is going to save you words. When you are using the keywords, it is going to save a lot of space for you and nobody will be able to say कि आपने ये aspect तो इसमें mention ही नहीं किया, because culture is all encompassing. So cultural assimilation is the word which should come here because it is visible in all the aspects that we are going to discuss. Now when we will come to the body part, if we talk about architecture, so what is the kind of architecture that is flourishing during this particular period? So Persian style of architecture that is present. अब ब्रीफ अकाउंट देना है तो बहुत डिटेल में तो आप उसको लिख नहीं सकते हैं. आप इसके साथ एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि राजपूत स्टाइल was also assimilated when we are talking about architecture. So Persian style of architecture, another key term that should be there, that is assimilation of Rajput style of architecture. Now when we have to give examples here, तो 2 लाइन में तो आप इस चीज को लिख सकते हैं. When you have to give examples here, what are the examples that should come? See, there are a lot of examples when it comes to Mughal architecture, but when we are writing it, we should be careful about choosing our examples. Suppose if you are writing the example from the period of Humayun, when we talk about architecture, the most important period is of Shah Jahan. So if you don't mention example from Shah Jahan and you are writing example from the period of Humayun or Akbar, the person who is going to read your answer might think कि आपको बेसिक चीज ही नहीं पता है कि शाहजहां के वक्त में सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है. तो एक एग्जांपल यू कैन राइट फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, पंचमहल अगर आपने उसमें लिख दिया तो यू आर इंक्लूडिंग कि राजपूत स्टाइल का एग्जांपल आपने लिख दिया. दूसरा यू कैन टॉक अबाउट ताजमहल, लाल किला,
कोई भी जो आपको एग्जाम्पल उस समय ध्यान में आ रहा है, दैट इज एग्जाम्पल फ्रॉम दी शाहजहां's period. So that is another example that you can write. Coming to poetry, when we talk about poetry during Mughal period, mostly you will find poetry in vernacular language. The most exquisite kind of poetry that we are finding, that is from वर्नाक्युलर लिटरेचर. इन पर्शियन ऑल्सो ऐसा नहीं है कि पर्शियन में आपको पोएट्री नहीं मिल रही है, मगर जो सबसे बेहतरीन पोएट्री का, क्योंकि हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जो सबसे बेहतरीन हमको एग्जाम्पल मिल रहा है, ठीक है. सो यू विल टॉक अबाउट द फ्लरिशिंग ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड विच वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द बादशाहs और रूलर्स themselves. Okay, you can give here the example of Tulsidas, so you can give the example of Ramcharitmanas, Kavitavali, Dohavali. There are a lot of texts. You can give the example of Surdas, you can give the example of Kesavdas. तो Rahim Das was one of Akbar's Navaratnas as well. So जो भी आपके दिमाग में इसमें से prominent example आता है, आप उसको लिख सकते हैं, and you can add another line. These people actually helped in the growth of vernacular literature. ठीक है, तो ये आप पोइट्री में लिख सकते हैं. कमिंग टू लिटरेचर, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर वी फाइंड टेक्स्ट्स ऑन हिस्ट्री राइटिंग. सो ट्रेडिशन ऑफ तारीख, जो आप दिल्ली सल्तनत से ही देखते हैं कि तारीख का आपको ट्रेडिशन मिलता है. सो दैट इज द ट्रेडिशन दैट इज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड एज वेल. सो यू कैन टॉक अबाउट ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, यू कैन टॉक अबाउट द ट्रेडिशन of recording biographies of important emperors. You can write another thing about writing texts on ethics and morality, translation of various Sanskrit texts into Persian and Arabic languages. So these things can come in literature. Here if you have to give your example, the most famous example is Akbarnama by Abul Fazl. ये इस समय का सबसे आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ रज़मनामा. रज़मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत. ओके, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ तूतीनामा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट्स ऑन एथिक्स एंड morality. तो इस तरीके से you can choose your examples here. There are a lot of examples. Some of them have been given in the model answer as well. हम यहाँ पर आपको वो examples बता रहे हैं जो सबसे prominent है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा relevant होंगे यहाँ पर. So you can give all these examples. You can give the example of Humayunama by Gulbadan Bano Begum as well, because when we are talking about Mughal period, women also contributed a lot when it comes to writing literature. So that is also one example that you can give. Coming to painting, so when we are talking about painting style, you can write that Mughal paintings represented two-dimensional paintings as well as three-dimensional paintings, which shows the development of painting styles and influence of European culture in Mughal paintings as well. तो यहाँ पे आप example दे सकते हैं individual portraits made during the period of जहांगीर. ठीक है, जहांगीर के वक्त में हमको इंडिविजुअल पोर्ट्रेट मिलता है. उसके पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट का आइडिया नहीं एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑफ हियर यू कैन राइट दैट तस्वीर खाना ओपन्ड बाय अकबर. Important painters, you can give the example of बिस्वान दास, you can give the example of दसवंत सिंह. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं. जब आप ये दसवंत सिंह जैसे लोगों का जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये भी दिखाता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द एम्परर्स वर प्रमोटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वंस descent, because these are the people who are coming from the lower strata of the society. Okay, coming to the music style. So when we are talking about music, so here we see that classical Indian classical music is flourishing. So you will see that people are singing Drupad, and various gharanas at this point of time are developing as well. Largest number of texts in Persian on Indian classical languages have been composed during the time of Aurangzeb. So you can give these example. अगर आपको किसी singer का example लिखना है, so you can write the example of Baiju Bawra, you can write the example of Tansen, the very famous person which we often hear about. Okay, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. तो इसमें देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्कोप टू गो इनटू द डिटेल्स, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन विच इज आस्किंग 5 एस्पेक्ट्स.
और अगर आप 2-2 लाइन सब में ही लिखते हैं तो भी आपका वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि वी गेट इमोशनल, वी राइट अ होल पैराग्राफ अबाउट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड लीव आउट द अदर। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। आपको मैक्सिमम 1.5 पेजेस में ये पूरा आंसर सम अप करना है, ठीक है। देन यू कैन राइट एन एग्जाम्पल दैट मुगल्स helped in the flourishing of Indian culture in various aspects, which is still a very rich heritage when we talk about Indian culture। ऐसे करके आप अपना कंक्लूजन यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, ये चीज को दिखाते हुए कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हुआ है, एक डायमेंशन में सिर्फ नहीं हुआ है। एंड दे हैव अडॉप्टेड द लोकल कल्चर as well. So it's a very beautiful blend of the existing Indian culture and Persian style. तो ये आपके कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका उसमें एलिमेंट आएगा। Now talking about the second question, what just give me a minute. So here, the second question, what were the factors responsible for the launch of civil disobedience movement? In what ways did it differ from non-cooperation movements? It's a very simple question. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं इसमें। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च के कॉजेज लिखने हैं हमको, और दूसरा क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड civil disobedience movement. Very simple type of question. So here you can start by writing an introduction of Indian national movement and its various phases. कि progress किया है from non cooperation to civil disobedience to quit India movement. By writing that, that you can introduce your answer. Then you have to directly move to the causes of the civil disobedience movement. So you can briefly write one line about the timeline of civil disobedience movement, and then you have to come to the causes directly. तो उसमें आप headings बना सकते हैं कि क्या क्या causes हैं, और उसको 2-2 लाइन में explain कर सकते हैं। तो आपके क्या क्या causes हो जाएंगे, साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन आया था, ऑल वाइट कमीशन था, उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, दिस इज समथिंग विच इन्फ्यूरिएटेड द इंडियंस। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, दैट वाज आल्सो पास्ड इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, लाहौर सेशन का जो हम बात करें उसमें पास किया उन्होंने कि पूर्ण स्वराज। पहले क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस, तो उसमें एक ये भी चीज आप लिख सकते हैं एक पॉइंट की दे आस्क्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस व्हिच वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। देन यू कैन कम इनटू द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज दैट वाज passed. Then abolition, asking for abolition of salt tax, that was another major reason, because what Gandhi is saying that this is something which is very basic for every Indian, you cannot tax the making of salt. So that can be your 4th reason. And then you can write that culmination of various, and another factor that you can mention here is they were demanding for the release of the HSRA members who were actually imprisoned and in the bomb conspiracy. So that can be another point. And then you can write simply कि ये सारे जो factors हैं it led to the launch of civil disobedience movement under the leadership of Mahatma Gandhi. ठीक। Then the second part of the question which you have to address, तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट था। तो यहाँ आपका 2 अप्रोच हो सकता है, एक तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि अपना 1 2 3 4 पॉइंट करके लिख दिया, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे करके लाइन बना के हियर यू कैन राइट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हियर यू कैन राइट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्लियर कट रूल है कि ऐसे ही लिखना है, आपका जिसमें कंफर्ट है उसमें आप लिख सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी क्लियर कि आप डिफरेंस बता रहे हैं। पॉइंट वाइज आपका डिफरेंस होना चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए बट ऐसे करके जो कि उसको अलग करें, ठीक है। तो उसमें अंतर आपके में दिखना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, इवन इफ यू आर राइटिंग इट इन पॉइंट फॉर्म। तो क्या डिफरेंस हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ, नॉन कोऑपरेशन, दे डिनाइड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कोऑपरेट नहीं करने में क्या किया उन लोगों ने, टाइटल्स को गिव अप कर दिया,
गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट कर दिया, गवर्नमेंट एग्जाम्स को बॉयकॉट कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस में क्या है? डिसओबेइंग द गवर्नमेंट। तो यहाँ नॉन कोऑपरेशन तक बात नहीं सीमित है, यहाँ क्या हो गया? डिसओबे कर रहे हैं। तो डिसओबे करने में क्या करेंगे? दे विल स्टॉप पेइंग द टैक्सेस। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन हियर, नॉट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहले तो आप सबसे टर्मिनोलॉजी का ही डिफरेंस लिख सकते हैं। आप जब हेडिंग बनाएंगे तो उसमें टाइमलाइन का डिफरेंस लिख दीजिएगा कि टाइमलाइन इसका यहाँ से यहाँ तक है, इसका ये टाइम। उसके बाद जब शुरू कीजिए तो आप पहला डिफरेंस, सी आपका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को सबसे पहले लिखें। तो एक डिफरेंस जो आपका हो जाएगा वो टर्मिनोलॉजी का हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी से ही आप क्या बता रहे हैं? मेथोडोलॉजी कैसे डिफरेंट है, ठीक है, कि दोनों में मेथड्स अलग अलग है। यहाँ नॉन कोऑपरेशन है, यहाँ मेथड डिसोबे करने का है। दूसरा आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड क्या है। सो इन कंपैरिजन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वेल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ geography. That is one thing which you can talk about. You can talk about chronology. Non-cooperation movement had much shortened life in comparison to the civil disobedience movement. Second phase का बात अगर आप करेंगे तो 1934 तक गया है। तो ये मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन ऑल्सो काफी ज्यादा आपको लंबा देखने को मिलता है। यू कैन टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन, सोशल बेस जो है इसका, उसकी आप बात कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंस है कि नॉन कोऑपरेशन का बात कर रहे हैं तो विमेन आर रिलेटिवली लेस इन नंबर, वेरी फ्यू विमेन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट वेरी फ्यू विमेन पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। जब हम मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू आप लिख सकते हैं कि खिलाफत इशू के कॉन्टेक्स्ट में दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर नंबर्स डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। एक्सेप्शन क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके अलावा आपको बाकी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें यहाँ पे नहीं मिलेगा उनका लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन। विड्रॉ करने में रीजन में आप क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीपल वर नॉट मच एक्विंटेड विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो यहाँ जगह जगह पे वायलेंस इरप्ट कर रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक दे वर वेल ट्रेंड विद द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ हमको वायलेंस के केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये अगर आप 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पे कंसोलिडेटेड तरीके से लिख पा रहे हैं, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है, क्लियर। देन यू कैन राइट, यू हैव टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि दोनों मूवमेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट का बेस ब्रॉडन करने में और नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में, दैट अल्टीमेटली लेड द वे टुवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ question. Now, in the third question, they are asking you to examine how did the entry of Mahatma Gandhi changed the discourse of India's struggle for freedom. So again, a relatively simple question. They are asking you to examine the way in which the entry of Mahatma Gandhi changed the course of Indian struggle. तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी के एंट्री से कोर्स कैसे चेंज हुआ, तो यहाँ हमको ये भी बताना है कि उस इंसान की एंट्री के पहले कोर्स कैसा था। सो यू कैन टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, यू कैन टॉक ब्रीफली अबाउट महात्मा गांधी एज हिज इंपॉर्टेंस इन नेशनल मूवमेंट। यू कैन राइट a basic introduction there. Then you have to talk about the scene of Indian national movement before the coming of Mahatma गांधी। तो रिलेटिवली एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि रिलेटिवली इसका जो बेस है, सोशल बेस है, वो स्मॉल है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ एलिट्स हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन टर्न द नेशनल मूवमेंट। मोस्टली दे आर इम्प्लाइंग द टेक्निक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सो प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोपेगेंडा, द 3 P's that we talk about। तो स्वदेशी के केस में बस आपको डिफरेंस देखने को मिला है, अदरवाइज आप देखेंगे और स्वदेशी के एंड तक भी आपने ये चीज पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं दे वर जेल्ड। तो पूरा वही सीन फिर से आ गया जो मॉडरेट्स का आइडिया था। तो ये सिचुएशन आप ये बता देंगे, इसमें आपके पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए कि ज्योग्राफिकल जो स्प्रेड है मूवमेंट का कम है, सोशल बेस इज वेरी नैरो, when we are talking about participation of various classes, not everybody is
included. Congress was called a microscopic minority of elite people. So that is something that you can talk about. Masses के इसी में आपका कनेक्ट हो जाएगा कि masses तक मूवमेंट नहीं पहुंचा है, सबके इश्यूज एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं, कोई एक बहुत सेट रूल नहीं है, कोई एक सेट आइडियोलॉजी नहीं है जिसके तहत नेशनल मूवमेंट किया जा रहा है. तो नेशनल मूवमेंट ही नेशनल नहीं है, बिकॉज जियोग्राफिकल स्प्रेड इज लिमिटेड एंड सोशल बेस इज लिमिटेड. तो ये आपको दिखाना है. देन आफ्टर राइटिंग अ पैराग्राफ ओवर इट, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमको चेंज दिखाना है ना. तो चेंज के लिए आपको सिर्फ आप ये एक पैराग्राफ में दिखा देंगे इन 3-4 लाइन्स दैट दिस वाज द सिचुएशन बिफोर द कमिंग ऑफ Mahatma Gandhi. Then you will talk about the fact, you will write a line that coming of Mahatma Gandhi changed the course of Indian national movement drastically. How it broadened the geographical, एक आप geographical base लिख देंगे, it broadened the geographical base. So what Mahatma Gandhi is doing? Mahatma Gandhi is saying that the sessions of Indian National Congress will be held in different parts of the country every year. ठीक है, तो उससे क्या कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्प्रेड अलग अलग एरियाज में हो. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग दैट वी आर गोइंग टू यूज लोकल लैंग्वेजेस. तो जो लैंग्वेज ऑफ द सेशन होगा वो उस पर्टिकुलर जगह का लोकल लैंग्वेज होगा. फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात में हो रहा है तो इन गुजरात दे विल होल्ड दिस सेशन इन गुजराती. इफ इट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र दे विल होल्ड दिस सेशन इन मराठी. तो जो इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड था उससे हटके हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू दी masses. So what will be the impact of this? It will broaden the social base of the movement. तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या आएगा, broadening the base of the national movement. तो इसमें आप दिखा सकते हैं कि peasants, workers, women, Muslims ये सारे इंक्लूड हो रहे हैं. एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे खेड़ा लिख सकते हैं, आप खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है. पेजेंट्स के में वर्कर्स में लिखना है तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लिख सकते हैं आप. देन इफ यू हैव टू टॉक अबाउट वुमेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन में आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एग्जांपल लिख सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन गिव कि ब्रॉडनिंग द सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट, लेजिटिमाइजिंग द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू पॉलिटिक्स. सो दैट इज नॉट समथिंग which was actually accepted earlier. Women were participating in politics, but their entry was not legitimized. They were looked down upon for stepping out in public. What Gandhi is doing? Gandhi is legitimizing their entry in the public sphere. So that is again a very major change which is coming with the Mahatma Gandhi taking charge of the national movement. Here you can give various examples. Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Bhikaji Kama, बहुत सारे examples हैं जो आप यहाँ पे, कल्पना दत्ता was a revolutionary. तो आप ये सारे examples यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, what else can you write? You can write about the various social eradication of various social evils along with fighting the British. So इस अभी तक पहले में क्या था, सोशल रिफॉर्मर अलग है, जो नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं वो लोग अलग हैं. यहाँ गांधी क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को एक साथ ऐड कर रहे हैं. तो इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर एग्जांपल, ही हैज वर्कड टुवर्ड्स दैट, इमांसिपेशन ऑफ वुमेन. तो ये सारा आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं. फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिविंग इंडियन पीपल टूल्स टू फाइट द ब्रिटिश. क्या टूल्स हैं वो, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. ये दोनों टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाई डिड इट बिकम इंपॉर्टेंट? बिकॉज ब्रिटिश हैड द पावर. इफ यू आर गोइंग टू बी वायलेंट अगेंस्ट देम, दे आर गोइंग टू कर्ब यू डाउन. The way it happened in 1857, the way it happened in Swadeshi movement, because they are much more powerful than you. So when Gandhi is talking about non-violence, when Gandhi is talking about satyagrah, he understood the broader situation back then. That is why he is saying, आप non-cooperation से Quit India movement तक अगर पूरा journey देखें, non-cooperation में he called off the movement. Quit India movement में what he is saying, that everybody is in charge of themselves. So back then he understood कि British के खिलाफ already resistance बन चुका है. तो उस समय अगर हम वायलेंस कर भी रहे हैं तो इंडियन मासेस विल बी एबल टू डिफीट देम. वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिश के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त में वो प्रेशर नहीं था. सिविल डिसोबीडियंस में आप देखेंगे तो ब्रिटिश are criticized by American press solely because of the fact that they were beating people who were unarmed and doing a satyagrah. So he is providing Indians the tools
which could have helped them fight the British in more effective ways, and those tools are of ahimsa and सत्याग्रह. ठीक है. What else is he doing? इनके एंट्री के साथ क्या हो रहा है? That Gandhi is economically strengthening India as well by integrating certain symbols in the political movement. For example, constructive program. गांधी क्या कर रहे हैं? चरखा को उन्होंने नेशनल मूवमेंट का सिंबल बनाया. इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया द वे गांधी डिड. व्हाट गांधी इज डूइंग? गांधी इज सेइंग भाई बस लड़ने से तो नहीं होगा ना, आपको रोटी भी तो चाहिए. तो जब आप कॉमन मासेस को मूवमेंट में ऐड कर रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. उनका प्रॉब्लम क्या है? रोटी कपड़ा है उस वक्त में. उनको क्या फर्क पड़ता है कि कौन उनसे टैक्स ले रहा है? So when you want them to become part of the national movement, you need to economically strengthen them as well. So Gandhi is introducing charkha. He is making charkha the symbol of national movement कि उससे आप economically independent होंगे. So this is also one of the ways in which coming of Mahatma Gandhi changed the discourse of Indian national struggle. तो ये सारे points को आप वहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, clear है? Then you can write a conclusion that though there were various strands in Indian national movement, Gandhi is providing a broader leadership which is comprising all those strands together. क्योंकि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखेंगे, उसमें सोशलिज्म भी है, उसमें कम्युनिज्म भी है. देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड एवरीबडी इज गेटिंग स्पेस इन कांग्रेस. तो यहाँ पे हम एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पार्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट. सो बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी, इट वाज अ मूवमेंट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इंक्लूड इन ईदर योर कंक्लूजन और योर इंट्रोडक्शन. ओके, कि कैसे ये एक ब्रॉडर बेस सबको प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, क्लियर है जी. जब आप इराडिकेशन का बात करें, इराडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, तो देयर यू कैन टॉक अबाउट इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेजिटिमाइजिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, आइडिया ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. वर्धा एजुकेशन का हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुआ. आप देखेंगे कि हरिपुर कांग्रेस हुआ, उसके बाद से क्या हुआ? उन्होंने स्कीम लॉन्च किया, 37 में लेके आए कि ये हमारा एजुकेशन का मॉडल है, जो जाकिर हुसैन कमेटी के तहत उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. मगर उसके बाद ही क्या हुआ? कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें जबरदस्ती ड्रैग कर दिया गया विदाउट टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम इंडियन पीपल. सो इन प्रोटेस्ट कांग्रेस रिजाइंड. सो इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड. तो इस वजह से हमने उसकी बात यहाँ पर नहीं की है, बट यू कैन मेंशन इट. ठीक. The first thing he wanted to incorporate is to go for this provincial autonomy, then dominion status, but step by step man, then federation, then independence. देखिए, ये सिर्फ गांधी नहीं कर रहे हैं. दिस इज द डिसीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन जनरल कि हम डिमांड क्या करेंगे. व्हाट गांधी इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग विलेजेस सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स. तो उनका आइडिया वो ग्राम राज्य, राम राज्य के साथ कंपेयर करके वो बात कर रहे हैं. तो उनका जो आइडिया है, वो जो हम कांग्रेस का आइडिया की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं. सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड गांधीज आइडिया सोनली. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गांधीज पॉलिटिकल आइडिया, इट इज ऑफ स्टैब्लिशिंग राम राज्य, जिसके बारे में वो अपनी किताबों में, अपने लेखों में लिख रहे हैं. ठीक है, तो इसको सिर्फ गांधी के साथ में एसोसिएट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि ब्रॉड सोशल बेस, पॉलिटिकल बेस, ज्योग्राफिकल बेस, वो सबको ब्रॉडन कर रहे हैं. ही इज इंक्लूडिंग एवरीवन्स डिमांड्स. तो जमींदार क्लास का डिमांड भी, सिविल डिसोबीडियंस के जो आप 11 डिमांड्स पढ़ेंगे, उसमें जमींदार क्लास की भी डिमांड है, उसमें पेजेंट्स की भी डिमांड है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की भी डिमांड है, वर्कर्स की भी डिमांड है. सो ही इज इनकॉर्पोरेटिंग डिमांड्स ऑफ एवरी क्लास. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं हम पेजेंट्स के राइट्स की बात करेंगे. He is aware of the fact that there are different starters in society which existed back then, and everyone's need was going to be incorporated in his demands because he is talking about providing leadership to all. तो इस सेंस में आप एक ब्रॉड चीज ऐसे
लिख सकते हैं, जो ऐसे आइडिया है कि क्या स्टेटस देना है उसके में कांग्रेस एज अ होल वाज डिसाइडिंग, ठीक है। एंड इन लेटर टाइम्स यू विल सी दैट दे डिड नॉट लिसन टू गांधीज आइडियाज अ लॉट। तो वहां पे अगर आप गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो उसमें वो बहुत पेनफुली ये चीज कहते हैं कि प्रोबेबली कांग्रेस एंड नेहरू इज दे डू नॉट वांट टू लिसन टू मी, प्रोबेबली आई डोंट एग्जिस्ट दैट मच फॉर देम। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं, विच इज स्टेटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट दैट देयर आर पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट माइंडसेट। तो आप देखेंगे इसमें कि नेहरू का विजन दूसरा है, गांधी का विजन दूसरा है। देयर आर पीपल इन कांग्रेस हु आर फेवरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट गांधी इज अगेंस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो गांधी का आइडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के आइडिया के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। सम ऑफ द आइडियाज आर सिमिलर, बट Gandhi's idea is very much different from the ideas of Indian National Congress in many more ways. Okay, so in the case of partition also, Gandhi is somebody who is mourning the partition. He did not want partition, but Indian National Congress agreed for the partition. तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है कि आप गांधी के जब हिसाब से लिख रहे हैं तो क्या चीज लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। Now the next question, Indian press unarguably, यहाँ y add कर लीजिएगा, played a pivotal role in the Indian independence movement comment. So here they have asked you to comment. हमने ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया था कि when we look at the word comment, we have to critically analyze it, ठीक है। तो इसमें इनका स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन प्रेस जो है उसने बिना किसी डाउट के जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो वी हैव टू राइट द पॉजिटिव्स एज वेल एज वी नीड टू क्रिटिकली एग्जामिन इट वेदर इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल और नॉट। तो हम यहाँ पे पहले इंडियन प्रेस का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे कि प्रेस, कमिंग ऑफ प्रेस, इसने ब्रॉडन किया बेस किस चीज, इसने किस चीज को अपॉर्चुनिटी दिया ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन कि डिफरेंट पॉलिटिकल क्लास के आइडियाज को एक्सप्रेस करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बना एंड इट डिड प्ले अ क्रूशियल रोल। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट योर बॉडी you will write that it played a pivotal role in the Indian independence movement. How? वहां पे आप क्या चीजें लिखेंगे? थैंक यू। वहां पे जब आपको फैक्टर्स लिखने हैं तो आप क्या क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? By providing a medium to political leaders to express their ideas. So what press is doing? Press is providing the leaders in expressing their political ideas, and in that expression what they are doing, they are criticizing and questioning British policies which were not in the favor of Indian people. वो आपका एक पॉइंट बनेगा। दूसरा क्या आएगा? They are educating the Indian masses. So by making them aware of the un-British policies of British, this is the term that they used to use, that un-British, because they were not anti-British. When we are talking about initial nationalist leaders, they were not anti-British. What they were saying that you are becoming un-British in your policies in India. So इस तरीके से करके क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस फैला रहे हैं जो ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ, किसमें? अमंग्स द इंडियन masses. तीसरा आप यहाँ पे पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि प्रेस वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरेडिकेटिंग द सोशल इविल्स एंड बाय दैट वे। तो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रोल कैसे प्ले करेगा? जब प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटिंग द मासेस, बिकॉज देयर इज दिस आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट लाइन्स, on religious lines, when we are talking about 19th 20th century, on lines of gender. So when we are talking about discriminating these social evils, what will happen? People will unite. तो ये key terms आपके में आने चाहिए कि Indian press played an important role in spreading awareness against eradicating the social evils which helped Indians uniting together against British. तो ये सब आपके उसमें key terms होने चाहिए। यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, संवाद कौमुदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हरिजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स आपके मॉडल आंसर में भी मौजूद है। तो इस तरीके से कुछ कुछ जो पॉइंट्स नहीं है दैट यू कीप राइटिंग,
ठीक है, तो सोशल बेस को ब्रॉडन करने में इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। और क्या इसने हेल्प किया? इन यूनाइटिंग द लीडर देमसेल्व्स, कि जो लीडर्स हैं अलग अलग एरियाज में एक दूसरे के आइडियाज को एक दूसरे तक पहुंचाने में इंडियन प्रेस ने अपना योगदान दिया, बाय ऑफरिंग अ वेरी सॉलिड क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो रीडिंग द न्यूज पेपर, सो इट प्रोवाइडेड देम अ सेफ स्पेस जिसके थ्रू ये न्यूज सब तक पहुंच सकती है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स तक पहुंच सकती है। क्योंकि ऐसे अगर आप मान लीजिए कि आपने एक सभा आयोजित किया, वहां पे आप भाषण दे रहे हैं, तो वहां जरूरी थोड़ी है कि ब्रिटिश ऑफिशियल आके सुनेगा, बट व्हेन इट इज कमिंग आउट इन प्रेस, द न्यूज़पेपर इज रीचिंग एवरीवन्स प्लेस, so when it is reaching everybody's home, they are able to understand that the national movement is growing against them, and that will also shape a lot of British policies. So this is also one of the ways in which press has played a pivotal role. Now here we are talking about critically examining the role. तो हम जब ये बोल रहे हैं सोशल बेस को बढ़ाया उसने, सोशल इवल्स को इरेडिकेट करने में हेल्प किया, so how many people are educated? How many people are writing in vernacular languages? These are the questions that you can raise here, that the literacy of Indian people was very low. So not everybody could have read the newspapers. Second point आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि not everyone was writing in vernacular language. So again जो educated है उनको भी English education तो नहीं है primarily. तो जब हम बात कर रहे हैं आइडिया ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन का, तो अगर वर्नाक्युलर आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं तभी आपको लोग पढ़ सकते हैं। तो पीपल प्राइमरली यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेस, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्राइमरली, जब हम यही बात कर रहे हैं कि इनिशियल फेज में बिफोर द कमिंग ऑफ गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कंसिडर्ड अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ एलीट पीपल, दे आर डेफिनेटली राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो that is also one of the critical comments that you can give. Third, when we are talking about writing in vernacular languages as well, कि गांधी के आने के बाद से vernacular में अगर बहुत ज्यादा लिखना हुआ भी, तो कौन सी vernacular language में? Whom are you directing your article towards? If you are writing in Marathi, you are targeting Maratha people. If you are writing in Odia, you are targeting people in Odisha. If you are writing in Hindi, you are targeting people in Hindi belt. तो वो बहुत बड़े स्तर पे नेशनल लेवल पे तो एनीवे सबको इम्पैक्ट नहीं कर रहे. सो यू कैन रेज दीज 3 पॉइंट्स, दैट विल बी योर क्रिटिकल कमेंट. ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें कमेंट वर्ड लिखा है. मोस्टली व्हाट वी सी, आई थिंक इसमें भी आपका यही है, इसमें भी आपको आंसर में ये नहीं लिखा, क्रिटिकल एस्पेक्ट इज मिसिंग देयर. सो यू नीड टू राइट दीज पॉइंट्स हियर, और ये पॉइंट से आप अपना आंसर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने क्रिटिकली कमेंट किया है. When you are writing the conclusion, it should end on the positive note. कि आप ये लिखेंगे, despite these limitations, Indian press did play a very important role in spreading the national movement to the common masses. ठीक है, क्योंकि उसका impact तो positive था ही ना. In the conclusion, you don't have to be नेगेटिव, इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो कमेंट दे दिया आपने, मगर उसके बावजूद भी आप ये चीज दिखाएंगे कंक्लूजन में कि ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत पॉजिटिव रही एंड इट डिड हेल्प यूनाइटिंग दी पीपल. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The history of Indian freedom struggle is incomplete without mentioning contributions of women. With emphasis on the Gandhian era, throw light on the role played by women in the freedom struggle of India. So here they have given you a statement that the history of Indian freedom struggle is incomplete without mentioning the contribution of women. So you will write an introduction about contribution of women in Indian national movement. Body में जब आप आएंगे तो आपको points क्या होंगे? इन्होंने लिखा है with emphasis on the Gandhian era. तो गांधीयन एरा पे एम्फसाइज करना है, मगर 3-4 लाइंस यू हैव टू राइट अबाउट द पीरियड बिफोर दैट एज वेल, क्योंकि इन्होंने क्लियरली ये नहीं लिखा है कि टॉक अबाउट गांधीयन एरा, इन्होंने लिखा है विद एन एम्फसिस ऑन गांधीयन एरा. सो यू हैव टू एम्फसाइज अपॉन गांधीयन एरा, बट यू नीड टू राइट एटलीस्ट 3-4 लाइंस बिफोर दैट एज वेल. वहां जब आप 3-4 लाइन लिखेंगे तो आप क्या मेंशन कर सकते हैं? देयर not only Rani Lakshmibai, in general women's contribution in 1857
rebellion. So Hazrat Mahal is leading from Lucknow, Lakshmibai is leading from Jhansi. There are various women. आपको जो prominent, आप broad उसमें आपका key statement क्या होगा? They contributed in the rebellion of 1857. Example you can choose. आपको नहीं कहीं और का याद है, आप लक्ष्मीबाई लिखिए, ठीक है. In spreading education, एजुकेशन से भी तो आप नेशनल मूवमेंट के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं ना. सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई, अमर जीवन लिखा है जिन्होंने, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन वुमन बाय हरसेल्फ. तो ये एग्जांपल्स आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं. इन 1857 इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इविल्स एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंगस्ट वुमेन. क्योंकि अगर एजुकेटेड ही नहीं है तो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करेंगी? दे नीड टू बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो इसीलिए इंपॉर्टेंस इन स्प्रेडिंग द एजुकेशन वो भी यहाँ पे आएगा. स्वदेशी मूवमेंट में ब्रॉडली आपको लिखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है. विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्वदेशी मूवमेंट इन बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स इन पिकेटिंग द शॉप्स. ठीक. देन you will move to the Gandhian era. Gandhian era की आप बात करेंगे 1916 से पहला मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है till 1947. Then when you have to emphasize upon it, you will talk about their तो आप in general पहले एक चीज लिख लीजिए कि क्या क्या कर रही थी वो. In spreading awareness amongst women primarily, in picketing the shops, in boycotting British goods, in spreading awareness against liquor. तो ये सारी चीजें सोशल लेवल्स थी उस समय. तो पॉलिटिकल और सोशल, इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, वो भी तो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है. इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया बाय यूजिंग चरखा एट होम. women are primarily doing that. The use of spinning wheel. So that is another very major contribution. क्योंकि जो उससे कपड़ा बन रहा है और बिक रहा है उससे फंड वो किसको कर रही है? कांग्रेस. So women have played a very important role economically as well in the Indian national movement. तो ये आप पॉइंट्स लिखेंगे, फिर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे. सरोजिनी नायडू 1919 में विमेन को भी ग्रांट कर दिया था उन्होंने राइट टू वोट. बहुत कम विमेन को किया था, मगर 1919 में किसका योगदान है? सरोजिनी नायडू, इंस्पायर्ड बाय गांधी. ठीक है. तो यहाँ पे इसमें हम पॉलिटिकल अवेयरनेस में और पॉलिटिकल राइट्स असर्ट करने में उनका रोल लिखेंगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विमेन पार्टिसिपेटेड एट अ रिलेटिवली लोअर स्केल. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आप आएंगे. प्राइमरी मूवमेंट्स लिखिए, क्योंकि जी हाँ, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एनी बेसेंट एज वेल. सी देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. मैं आपको ब्रॉड थीम्स बता रही हूँ कि क्या क्या लिखना है आपको. ठीक है. एग्जाम्पल तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, जो भी आपको एग्जाम्पल उसमें ध्यान में, हर किसी का एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है. तो होम रूल लीग जी, नो 1916 गांधीयन एरा ही तो है. शी हैज वर्कड विद गांधी. ओके. तो आएगा इसमें गांधीयन एरा में. देखिए, गांधीयन एरा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गांधी की बात हो रही है. गांधीयन एरा हम किसको कहते हैं? 1916 टू 1947. तो उसमें और भी तो है विमेन. देयर आर विमेन वर्किंग विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1920s. दे ऑल्सो कम अंडर गांधीयन एरा. इन्होंने ये नहीं लिखा अंडर गांधीयन लीडरशिप, इन्होंने लिखा है गांधीयन एरा. तो बाकी सारे स्ट्रैंड में भी जो विमेन है उनका भी एग्जाम्पल यहां पर आएगा. ठीक है. वो तो अभी आगे आएंगे ना, अभी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे ही हैं. आप डेकेड वाइज चलिए ना. तो 20s में लिख रहे हैं. जब 20s का लिखेंगे आप तो वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड में शुरुआत होता है. विमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इन मच लार्जर नंबर्स. विमेन सीपीआई में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रेवोल्यूशनरीज, उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं. तो ये सारे की टर्म्स आने चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विमेन काम कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरीज के साथ विमेन काम कर रही हैं. तो कल्पना दत्त वगैरह का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा. भीकाजी कामा का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं. देन यू कैन टॉक अबाउट विमेन इन क्विट इंडिया मूवमेंट. सो एज, देखिए यहाँ पे एज, रिलीजन और जेंडर तीनों का बाउंड्री क्रॉस करके विमेन आर पार्टिसिपेटिंग. तो एज वाला फैक्टर आप कहाँ मेंशन कर सकते हैं? आप जब बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट देयर इज अ होल ग्रुप ऑफ किड्स
female kids who are participating in spreading information from one area to the other, led by Indira Gandhi. So that is also contribution of women in the case of smaller female kids. तो वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने जो फीमेल रेजिमेंट बनाया अपने आर्मी में, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स कैन कम. तो इसमें आपको ब्रॉडली क्या बनाना है कि आपको बनाना है, होम रूल लीग में आप लिख सकते हैं एक सरोजनी नायडू का एग्जाम्पल इन मेकिंग ब्रिटिश ग्रांट पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, वो आपका दूसरा हो सकता है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप लिखेंगे. तीसरा आपका ब्रॉड जो कैटेगरी आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जी हाँ, सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजर कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया ना. जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए उसका रिजल्ट क्या है आप देखेंगे, कोई रिजल्ट नहीं है. तो हम क्योंकि वी हैव लिमिटेड वर्ड्स हियर, तो जहां पे मेजर कंट्रीब्यूशन है, जहां मेजर रिजल्ट है, आपको वहां का यहाँ पे इंक्लूड करना है. ठीक, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रेवोल्यूशनरीज, तो कल्पना दत्त का एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेवोल्यूशनरीज का. उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, देन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन आर्मी जो कि लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, सो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो उन्होंने बनाया, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दैट एज वेल. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब इंटरिम गवर्नमेंट बना तो उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. तो ये सारा कंट्रीब्यूशन आप ऐसे करके अगर एक एक लाइन करके आप एक एक डेकेड वाइज चलेंगे तो आपका कुछ छूटेगा भी नहीं प्रोमिनेंट, एंड यू विल बी एबल टू कम अप विद अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, सो दीज विल बी योर 8 to 9 पॉइंट्स विच यू हैव टू इंक्लूड. क्लियर है? Then you can conclude it कि without the contribution of women, the Indian national movement could कि ये जो है कि एक multifaceted जो movement है वो नहीं होता. ठीक है, so that is something which you have to bring in the conclusion. तो जब आप multifaceted movement की बात करेंगे, so that will highlight the importance of women. ठीक है, clear है? Next question, analyze the nature of peasant movements during the nationalist phase. Examine how peasant movements played an important role in India's freedom struggle. तो इसमें भी दो पार्ट है. Analyze the nature of peasant movements during the nationalist phase. What do we mean by that? हाँ, तो 19th century में मूवमेंट्स हो रहे हैं बिफोर 1857, आफ्टर 1857. ओके, सो दैट मीन्स हियर वी नीड टू इंक्लूड 19th century एज वेल एज 20th century पेजेंट मूवमेंट्स. तो हमको क्या क्या पता है इसके बारे में? आप पेजेंट मूवमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ पेजेंट्स पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे ब्रीफ. उसके बाद आपके बॉडी में क्या चीजें आएंगी? नहीं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं आएगा. देखिए, हमको यहाँ नेचर ऑफ पेजेंट मूवमेंट लिखना है. सो वायलेंट, then turning non-violent. In 19th, they have very clearly given the word nature of peasant movement. So in 19th century, they were violent. 20th century movements became non-violent. Then localized. 19th century localized. 20th century nationalized. Then 19th century against the oppressor. 20th century against the British. ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारा नेचर है, दिस शुड कम इन योर आंसर. इसमें हमको रेवेन्यू पॉलिसी वगैरह पे नहीं जाना है. यहाँ पे हमको बहुत ही क्लियरली ये चीज दिखाना है कि हाउ, what was the nature, whether it was violent or non-violent, whom, towards whom it was directed, what was the need that these peasants were raising. एक पॉइंट आप नीड पे लिख सकते हैं कि पहले इनके लोकल नीड्स थे, लोकल ग्रीवांसेस थे. हम 20th century में देख रहे हैं तो इनके ग्रीवांसेस क्या है? दे हैव बिकम नेशनल ग्रीवांसेस. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर इमांसिपेशन, बट एट द सेम टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ ब्रिटिश एज वेल. ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स नेचर में आ जाएंगे. देन एग्जामिन हाउ पेजेंट मूवमेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो पेजेंट मूवमेंट क्या है? पेजेंट ही तो हमारा एक ब्रॉडर नेशनल बेस है ना, because India has been an agriculturalist country. So when we are talking about these peasant movements, they are becoming the social base of national movement. तो यहाँ एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? चंपारण का लिख सकते हैं, आप खेड़ा का लिख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह लिख सकते हैं.
You can write Kisan Sabhas being organized by Nehru, by Patel in various areas of the country. So they are how peasant movements are helping. They are broadening the social base. By making peasants aware, you are broadening the political base as well, because when you are making sure that peasants are participating in the movement, then only it can be called a national movement. जब तक आपका ब्रॉडर बेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक आप उसको नेशनल मूवमेंट कैसे बोलेंगे? दैट विल बी मूवमेंट ऑफ सर्टेन पीपल. तो ये एक पॉलिटिकल बेस को भी ब्रॉडन कर रहा है. अलग अलग जगहों पे नेशनल मूवमेंट हो रहा है, उससे क्या होगा? इट विल हेल्प इंटीग्रेटिंग द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकलाइज्ड मूवमेंट्स तो ऑलरेडी है. तो आपने क्या किया? सबके नीड्स को बस एक साथ में ऐड करके इंटीग्रेट कर दिया. व्हाट विल इट लीड टू इट्स? ग्रोथ ऑफ मास मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ये सारे आपके पॉइंट्स आएंगे कि नेशनलिज्म के आइडिया को ग्रो करने में. बिकॉज व्हाट विल हैपन ग्रेजुअली, इनिशियली किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं? जमींदार्स के, मनी लेंडर्स के. इनको फिर अवेयर क्या करेंगे? अवेयर ये करेंगे कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. उनका पॉलिसी है लैंड रेवेन्यू. दे हैव गिवन पावर टू द मनी लेंडर, दे हैव गिवन पावर टू द जमींदार. तो इससे क्या होगा? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. दैट विल बी योर अनदर पॉइंट. सो इन सारे पॉइंट्स को, ये जो 4-5 आपके पॉइंट्स, देखिए ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट लिखना है, हमको 4 पॉइंट ही लिखना है, मगर वैलिड होने चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें होता है नहीं, हमको 10 चीजें लिखनी है, हम उसमें बातें बनाने लग जाते हैं. दैट विल नॉट हेल्प. Because anyway there are 2 parts. If you are able to write 4 points, 4 consolidated points पहले वाले aspect में, 4 consolidated point in the second aspect, that is going to become a very good answer, instead of writing unnecessarily about a lot of things that don't make sense. So please don't fall into this trap that you have to write 11-12 points. 4 और 4 8 points are enough, मगर वो sense make करना चाहिए. ठीक है? तो आप कई जगहों पे देखेंगे आंसर, उसमें 10-10 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बट दे डोंट मेक सेंस. एक ही बात को दूसरे में भी रिपीट कर रहे हैं, दूसरा बात जो है वो तीसरे में भी रिपीट कर रहे हैं. तो रेपिटेटिव नहीं बनाना है हमको आंसर. हमारा आंसर क्लियर दिखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडनिंग द सोशल बेस, ब्रॉडनिंग द पॉलिटिकल बेस, स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, मेकिंग द टर्निंग द मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट. उसी में हम बात कर लेंगे किसका? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्ट्राटास ऑफ पेजेंट्स एट नेशनल लेवल. ठीक है? तो ये सारी चीजें आपका क्या करेंगे? नेशनल मूवमेंट में हेल्प करेंगी. इज दिस क्लियर? जी. Instead of examine, the keyword would be discuss. Then will there be any change in the answer? कहाँ, कौन से वाले क्वेश्चन में? In question number 6, there is examine how peasant movements played important role. हाँ. Instead of it, if there would be discuss how peasant movements played an important role. नहीं, डिस्कस में भी मोर और लेस आप यही लिखेंगे. अगर कमेंट है तो वहां पे आपको जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो भी लिखना है. ठीक है? Else it will be similar. मोर और लेस इट विल बी सिमिलर. अगर कमेंट है तो आप ये बात करेंगे कि कैसे इनिशियली 19th सेंचुरी का जो मूवमेंट है दैट वाज लोकलाइज्ड, दैट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट लोकल ग्रीवांसेस. it was a movement which had a short span of life. कि नेशनल मूवमेंट क्या है? लंबा चल रहा है. इसमें हम क्या बात करें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपने मूवमेंट आपका डाई डाउन हो गया. इट वाज वायलेंट इन नेचर. तो इस सब चीजों की वजह से क्या, तब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? ड्यू टू लोकलाइज्ड नेचर ऑफ द मूवमेंट द नेशनल मूवमेंट कुड नॉट grow. It was directed against the zamindars, against the money lenders, not the actual oppressors who were British. जमींदार और मनी लेंडर भी ऑपरेसर थे, मगर जो मेजर ऑपरेसर है वो कौन थे? ब्रिटिश. तो उसके वजह वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. वायलेंट है तो इट वाज इजी टू पुट डाउन. वहां पे आप क्रिटिकली इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करेंगे. ठीक है? अगर आपको लिखा है कि डिस्कस करने को तो आप पॉइंट्स बताएंगे. क्लियर है? ठीक है. सो देन इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Okay. Now coming to the other question, what were the various factors that shaped the British land revenue policy in India during their rule? Discuss its impact on Indian society. So again, there are 2 parts. That various factors that shaped British land revenue policy. Then you have to discuss the
इम्पैक्ट। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में क्या आता है ब्रिटिश के? फ्री लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। व्हाई एम आई आस्किंग दिस? इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पूछा है, क्लियरली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पूछा है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी पूछेगा, यू विल टॉक अबाउट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यू विल टॉक अबाउट ट्रेड, यू विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, यू विल टॉक अबाउट रेलवेज। ये चारों फैक्टर्स आएंगे। When they are asking land revenue policy, you have to talk only about land revenue policy. So land revenue policy में primarily क्या है? permanent settlement, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। ठीक है, तो ये तीन हमारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिकॉज यहाँ पे ना, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं ज्यादा। लैंड रेवेन्यू में पूरा इकोनॉमिक लिख के चले आते हैं, जहां इकोनॉमिक पूछा होता है जनरली वहां पे सिर्फ लैंड रेवेन्यू लिख देते हैं। तो ये सब टर्म्स के साथ में यू हैव टू बी क्लियर। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में? We'll introduce our answer by talking about land revenue policies introduced by British. So different land revenue policies in different areas of the country which impacted the peasants severely. ठीक है, ये हमारे इंट्रोडक्शन में आना चाहिए कि इम्पैक्ट सीवियर है और अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? तीन पॉलिसीज हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाना है। यू विल जस्ट मेंशन द नेम्स, परमानेंट सेटलमेंट, then Rayatwari, then Mahalwari. If you remember the year, that is even better. You can just write it in the bracket. Year नहीं याद है तो गलत नहीं लिखना है, just leave it out then. ठीक है, तो आपने ये चीज मेंशन कर दिया। Now you will write about the factors that shaped British land revenue policy. So what were the factors जिसने इनके land revenue policy को shape किया? उनका political agenda, they wanted to expand. So that is why they are coming up with various land revenue policy. इसी से लिंक करके दूसरा क्या लिख देंगे? They wanted stable income. Political expansion के लिए क्या चाहिए था? Stable income चाहिए था। And for stable income, what did they do? They came up with various land revenue settlements so that they can ensure the supply of money in the treasury of British East India Company. Third thing इनका क्या था कि क्या फैक्टर्स ने लीड किया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को? तो अलग अलग जगह वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग लोगों से सेटलमेंट कर रहे हैं। सो दे डिड नॉट वांट टू स्पेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो यहाँ एक क्या है, बहुत सारा पैसा बढ़ाना है और दूसरा खर्चा नहीं करना है। तो इससे क्या कर रहे हैं? दे विल कॉन्टैक्ट वेरियस क्लासेस, क्लास ऑफ मनी लेंडर, क्लास ऑफ रैयत्स, क्लास ऑफ जमींदार्स टू इंश्योर अ पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना, दैट दे वांटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी व्हिच वाज ऑलरेडी फंक्शनिंग व्हेन इट केम टू द प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या है? परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी जो इनका सिस्टम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का, या महलवाड़ी, क्योंकि इन दोनों में उन्होंने क्या किया? एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। रैयतवाड़ी में डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड दी पेजेंट। ठीक है, ये क्लियर है। इनका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और किस चीज से इंपैक्टेड है? दैट दे वांटेड इंडियंस टू गो ग्रो कैश क्रॉप्स। उससे भी, बिकॉज दे वांटेड इंडिया, दे वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो इससे आप क्या कर सकते हैं? इंडिगो का आप यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन लिंक द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो इससे भी इनका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, कि आप कैश क्रॉप्स को उनको उगवा रहे हैं। सो दीज कैन बी योर 4 prominent factors. Then if we have to talk about the impact, so we know that it had a very severe impact on Indian society. So you will just write that land revenue policies of British had a severe impact on Indian society. बहुत क्लियरली लिखना है, इसमें बहुत घुमाने की जरूरत हमको नहीं है। क्लियर आंसर लिखना है किस तरीके से इम्पैक्ट किया। सो हम यहाँ पे पॉवर्टी, जी हाउ The idea behind Jamindari was to move from Izardari towards Jamindari. So there was already presence of Jamindari class and we declared them as owners. हाँ But behind Virodhwari system, the factor was different. It was inspired from Baramal, from Tipu Sultan's. हाँ हाँ And more of the inspiration came from romantics.
Munro and Reed, they were romantics. So they are talking about peasant being the tiller of the land. See, you can do that, but the question is, do you have the time and space to go into the details of each land revenue policy? That is the whole problem. अगर आपको ऐसे लिखना है, you can write it like that. Here you have to directly hit the points. आपको 150-250 वर्ड्स में आंसर लिखना है, उसमें भी आपको 2 एस्पेक्ट्स पूछे हैं, तो you don't have time and space to write it in that way. So it's always better कि आप जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से लिखें, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है. अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम पे पूछ रहा है, then you have the time, you have the space, then you can do that. क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना, एक एक लैंड सेटलमेंट पे जाएंगे, आपने परमानेंट लिख दिया, रैयतवारी लिख दिया, महलवारी नहीं लिखा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा. वो भी तो उनके लैंड रेवेन्यू का हिस्सा है. तो अपने लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करनी है हमको मेजर पॉइंट्स उसके लिखने हैं जो कि सब में कॉमन है. ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, उनको इंडिया एज अ लैंड ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. तो ये मेजर पॉइंट्स हो गए जो कि चारों में कॉमन है. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे. दूसरा क्या है, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. तो क्या इम्पैक्ट था? तो इम्पैक्ट में हाँ पॉवर्टी. सबसे पहला जो इम्पैक्ट है पॉवर्टी, इम्पॉवराइजेशन ऑफ इंडियन पेजेंट्री. सब जगह हो रहा है, बीट इन द एरियाज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, या आप देखिए रैयतवारी, या आप देखिए महलवारी. प्रोसेस अलग है मगर सब जगह इम्पैक्ट एक ही है. अब अगर आप इसमें लिखने लगेंगे एक एक सेटलमेंट के हिसाब से, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट. ठीक, तो इम्पॉवराइजेशन ऑफ इंडियन पेजेंट्री, दैट इज वन फैक्टर. फ्रीक्वेंट फेमीन्स, एक फैक्टर है. दूसरा ड्रॉट. ड्रॉट क्यों आएगा? कैश क्रॉप उगा रहे हैं तो लैंड का फर्टिलिटी विल गो डाउन, दैट विल डिक्रीज, एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी अ लॉट ऑफ ड्रॉट्स व्हिच विल कम, लीडिंग टू थर्ड पॉइंट, फेमीन्स. ठीक है, फेमीन्स क्यों आएगा? एक तो ड्रॉट है, दूसरा आपके पास कैश क्रॉप है. तो आपने अगर उगाया होता, तो आप अगर आपने अपना उगाया होता अनाज, you could have eaten that, but when you have cash crops like indigo, like cotton, so they are dependent upon the market. आपने डेक्कन राइट्स में यही पढ़ा होगा कि वहां पे क्या हुआ, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ, उसके बाद से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है. नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द सिविल वॉर that was going on. So civil war ended there and that impacted the Indian market. वहां सिविल वॉर चल रहा था, इंडियंस को उन्होंने बोला तुम उगाओ कपास, तो इनको बहुत फायदा हो रहा था. बट व्हाट हैपेंड इन द एंड? सिविल वॉर ended and America again started producing cotton at the large scale, and in India we see Deccan riots in when? 1875. So we see Deccan riots happening here. ठीक है, तो ये इसमें हम क्या बात कर सकते हैं? इसमें हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंट फेमीन्स. इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का और क्या हमारे यहाँ इंपैक्ट पड़ा? प्रेशर ऑन लैंड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री again. So this is another factor that you can talk about. Not improving the technology in terms of agriculture, because they are not leaving peasants with enough crops so that they can earn some profit and invest in technology. ठीक है, तो ये वापस क्या करेगा? ये फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा. एक और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट क्या? वो ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या था कि देयर वाज दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पेजेंट्री एंड जमींदार क्लास व्हिच एग्जिस्टेड अर्लियर. तो zamindars are also exploiters, but at the same time they also helped the peasantry in times of need. British are breaking that traditional structure by introducing their land revenue policy, specifically in Rayotwari area and in Mahalwari area. So breaking of the traditional social structure of Indian society which did not happen in ancient and medieval times. तो यहाँ पे एक हमारा जो 5वां मेजर पॉइंट हो सकता है, that will be that particular impact.
Then you can talk about the impact on peasant in terms of legal matters. When they are coming up their land revenue policy, they are legalizing the idea of land. तो हर बात में वो क्या बोलेंगे, लैंड का ओनर कौन है. इन इंडिया ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड. ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में क्या है, वहां लीगल राइट्स नहीं है इनके पास में, इनके पास ट्रेडिशनल राइट्स हैं. तो जब आप ये बोलेंगे कि कागज लेके आओ, तो कागज तो है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, पेजेंट विल बी इंपैक्टेड सिवियरली, दे विल बी ड्रॉन इन लीगल केसेस. ये एक बहुत मेजर इंपैक्ट है जो कि आपको मेंशन करना चाहिए, बिकॉज पेजेंट्स आर लूजिंग देयर लैंड because they are actually involved in legal matters where they were not aware of their legal rights and the legal system in terms of language, in terms of money as well, because they have to hire a lawyer, they can't pay the fees. जमीन ही नहीं है, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं, तो जमीन से ही तो प्रॉफिट आएगा. तो आपने क्या किया, 10 साल 12 साल इस तरीके से करके आप केसेस को खींच रहे हैं. तो ये उनका इंडल्जेंस इन लीगल issues that also impacted them very severely. तो उनका लैंड ऑक्यूपेंसी राइट का खोना आप इससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेजेंट्री लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम बस ये लिखते रहते हैं फर्टिलिटी डिक्रीज हो गया, फेमिन आ गया और बहुत ज्यादा गरीब हो गए. मगर उसके साथ जो बहुत मेजर चीजें हो रही हैं वो क्या हो रहा है, लूजिंग देयर ऑक्यूपेंसी राइट्स, गेटिंग इन्वॉल्व इन लीगल matters, breaking of the traditional social structure of Indian society. ये आपके बहुत मेजर पॉइंट्स हैं which are the impact of British land revenue policy. ठीक है, so you should mention these points as well. ठीक है, क्लियर है. Absence of some peasants were forced into landless labor in the wrong हाँ. so disappearing from the society structure. तो वही है ना, लूजिंग द ऑक्यूपेंसी राइट. ऑक्यूपेंसी राइट जब आप लूज कर देंगे तो विल बिकम लैंडलेस लेबर. यू गेटिंग इट. तो यही जब हम बोल रहे हैं लूजिंग द ऑक्यूपेंसी राइट, वी मीन द सेम थिंग, बिकॉज दे आर बिकमिंग लैंडलेस लेबरर्स. तो वो अपने ही लैंड पे काम करके उनको आप क्या देंगे, मजदूरी दे देंगे जिस लैंड के वो अर्लियर ओनर थे. ठीक है जी. लैंड बिकम्स द कमोडिटी. जब लीगल राइट का बात करें तो वहां क्या बोलेंगे, कमोडिफिकेशन ऑफ लैंड. तो आई एम होपिंग कि आपने ये सब पढ़ा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास, तो इसीलिए हम मेजर पॉइंट्स आपको बता रहे हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेजेंट्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन लीगल मैटर्स, so why are they getting involved? Because land is commodified. लैंड इज बीइंग यूज्ड एज अ कमोडिटी. खरीदने बेचने की जब बात कर रहे हैं, पेपर दिखाने की बात कर रहे हैं, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिफिकेशन ऑफ द लैंड. सो दीज आर योर की टर्म्स विच शुड बी देयर. ठीक है, एनीथिंग एल्स? So here what we can talk about, we can, when we are writing the conclusion, we can talk about the severe negative, यहाँ पे we can talk about negative impacts because it did had negative impact and we are talking about oppressive colonial policies. यहाँ आप positive लिखेंगे तो you will land in problems. Okay, so here we have to talk about the severe impact on the Indian peasants. और इससे आप इसको positively add कैसे कर सकते हैं कि due to British land revenue policy there was a discontent prevailing amongst peasants which helped national leaders in driving them towards national movement. So this is how you can be positive in your answer कि discontent ने lead किया उनको national movement की तरफ. ठीक है, so that can be a very good conclusion. Any other question in the context of this particular discussion? Okay, so the next question, give an account of social life of the later Vedic people, compare it with the life of people during early Vedic people. So again this is a very simple question if you look at it. यहाँ कोई आपको critical नहीं करना है, आपको simply बात करना है. आप वैदिक पीरियड का एक ब्रैकेट दे देंगे, क्रोनोलॉजी दे देंगे अपने इंट्रोडक्शन में और ये लिख देंगे कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में डिवाइडेड है. देन यू विल कम टू योर बॉडी पार्ट एंड डायरेक्टली वहां पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल में नहीं जाना है, सीधा पूछा है आपको क्या सोशल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक
period. So you have to start from their social life of the later Vedic period. क्या क्या aspects है Varna system? A very prominent aspect. So you will talk, नहीं, Varna और caste different है. Caste is जाति, तो जाति, उपजाति, वर्ण, ये सब अलग अलग चीजें हैं. वर्ण सोशल जो डिवीजन है वो 4 है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. जाति उसके बीच में आ रही है कि जब इंटरवर्ण मैरिजेस हो रहे हैं, या हमने एंशिएंट की क्लास में बात किया है कि व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज आर बीइंग assimilated into the fold of varna system, then जातिज आर emerging. ऑक्यूपेशन के साथ में जातिज आर emerging. तो 3 वेज हमने क्लास में एंशिएंट के डिस्कस किया है in which जातिज आर emerging. So when we are using the term varna and jati, they should not be used interchangeably. They are very different concepts. ठीक है, I hope you are aware of it. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम में यू विल गिव द रेफरेंस ऑफ पुरुष सूक्त एंड यू विल टॉक अबाउट सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 वर्णस एंड they were given occupation on the basis of birth. ये आपका की टर्म होगा. Their occupation was decided on the basis of their birth. ठीक है, यहां हम बात करेंगे एक टर्म हमारा और क्या आएगा, द्विज. द्विज की बात करेंगे. अर्लियर 3 वर्ण they were given the right to education, not the other varnas. Then you will talk about the condition of women. तो condition of women in terms of losing their political right. Earlier they were part of Sabha and Samiti. They were involved in decision making process. In later Vedic period, what is happening? They are losing their political right. They are losing their ritualistic right. They are losing their social rights. So in terms of marriage, you can talk about the fact कि उनको public life से private life के तरफ लेके गए. Marriage में हम क्या देखते हैं यहाँ पे? Marriage में हम देखते हैं polygamy is present, polyandry is present, monogamy is also there, but polygamy is the most prevalent form of marriage. तो उसके वजह से क्या होगा? Women का condition और भी ज्यादा खराब होगा. Polyandry again very exploitative for women because there is this idea of fraternal polyandry. So when we are talking about it, again condition of women is declining. Do they have property rights? No. So they can hold stridhana. Stridhana again क्या है? It is given you on the pretext of getting married. So हमने क्लास में एक रेफरेंस लिखाया था आयतरीय ब्राह्मण का. That too you can use here क्योंकि पूरा क्वेश्चन सोशल लाइफ पे है कि आयतरीय ब्राह्मण is saying that daughters are a source of pain for the family. तो ये आप यहाँ पे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं. डिक्लाइन इन द रिचुअलिस्टिक स्टेटस ऑफ वुमेन. तो हमने ऋग्वेदिक में आपको ये चीज बताया था कि कैसे उषा, अदिति, दोज फीमेल गॉडेसेस आर प्रेजेंट, हियर दे आर डिक्लाइनिंग. ओके, तो उनका पोजीशन यहाँ पे खत्म हो गया, उनको कोई हिम डेडिकेट नहीं किया गया है. तो ये सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस. So we talked about 8 forms of marriages and how when we are looking at Paishach marriage, we are looking at Rakshas marriage. They are again showing, they are indicating towards the declining status of women. तो ये आप सारे यहाँ पे points को लिख सकते हैं. Dowry, उसके earlier references आपको मिलने लगते हैं. तो ये यहाँ पे आपके points later Vedic society में आएंगे. ठीक है. Now what you have to do, you इसमें you can also talk about the ashram system. इस समय आश्रम सिस्टम आ रहा है. 16 संस्कारास. सो संस्कारास आर कमिंग. गोत्र, आइडिया ऑफ गोत्र. मैरिज में इंडोगामी, एक्सोगामी, ये सारी चीजें आ रही हैं. सो दीज आर ऑल्सो माइनर पॉइंट्स विच यू कैन इंक्लूड. मेजर पॉइंट्स हमको पहले क्या करना है, वर्ण सिस्टम, उसके बेसिस पर जो एक्सक्लूजन हो रहा है सोसाइटी में उसका बात करना है. दूसरा मेजर पॉइंट कंडीशन ऑफ विमेन. विमेन में भी आपके सब पॉइंट्स होंगे. लूजिंग पॉलिटिकल राइट्स, लूजिंग देयर सोशल राइट, लूजिंग देयर रिचुअलिस्टिक स्टेटस. उसके अलग सब पॉइंट्स हैं कि सोशल में बात करेंगे तो एजुकेशन का बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे. इज इट मेकिंग सेंस? या हम इसको ऐसे देखिए, सोशल में पहली बात करेंगे तो वर्ण सिस्टम की बात करेंगे. डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वंस बर्थ. ठीक है. ऑक्यूपेशन बर्थ पे है, इससे हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इसको ऐड करेंगे. यहाँ पे हम बात करेंगे द्विज की, द्विज स्टेटस की बात कर लेंगे. विमेन की बात करेंगे तो विमेन में हम क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स. सो लूजिंग द पॉलिटिकल राइट सभा और समिति में. देन वी विल टॉक अबाउट सोशल राइट. सोशल राइट में हम क्या क्या यहाँ बात करेंगे, मैरिज.
तो मैरिज में आपका पॉलीएंड्री, पॉलीगमी, फिर जो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं दे विल कम हियर, ठीक। देन यू विल टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी राइट में क्या है, स्त्रीधन है, उसकी बात करेंगे। तो स्त्रीधन से उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा, दे आर फोर्स्ड टू लिव एज मैरिड विमेन। उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दे कैन चूज नॉट टू गेट married. Here you can talk about dowry. Here you can also talk about the reference in Aitareya Brahmin that women daughters are source of pain. ये इस तरह के हमको references मिल रहे हैं। इसमें एजुकेशन की हमने बात कर ली कि एजुकेशन की भी आप यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ सोशल में मैरिज, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, दे आर नॉट हैविंग द राइट टू एजुकेशन, जो उनको ऋग्वेदिक पीरियड में था। देन यू कैन टॉक अबाउट द थर्ड, रिचुअलिस्टिक, कि रिचुअलिस्टिक उनका राइट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये आपके मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद यू कैन टॉक अबाउट कमिंग ऑफ संस्कारस, कमिंग ऑफ आश्रम सिस्टम, क्योंकि ये सब चीजें भी तो इंट्रोड्यूस हो रही है। कमिंग ऑफ गोत्र, गोत्रा में विद गोत्रा द आइडिया ऑफ इंडोगामी एंड एक्सोगामी, all these ideas are being introduced. So all these things are part of later Vedic society. The second part is asking you to compare it with the life of people during Rigvedic people. तो social life ही compare करने बोल रहा है। Same facets आएंगे। वर्ण system, ऋग्वेदिक से कंपैरिजन लिखेंगे। दूसरे हिस्से में कंपैरिजन में क्या लिखेंगे, इन ऋग्वेदिक टाइम सोशल डिविजन एग्जिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, नॉट वंस बर्थ। तो हमने ऋग्वेद का एक वहां पे आपको कोट लिखाया था एंशिएंट पढ़ाते हुए कि एक फैमिली में 3 अलग अलग जाति से बिलोंग करने की बात लोग कर रहे हैं। यू कैन कोट दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर, ठीक है। सो सोशल डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वंस birth. Everyone has the right to education including women. Okay, so here यहाँ पे शूद्रास को बाहर कर दिया। द्विज जहाँ लिखेंगे वहां यही बात करेंगे कि शूद्रास were kept out of the system of education. Here they were also, तो वर्ण था ही नहीं, तो everybody was getting education. डिविजन किस बेसिस पे था ऋग्वेदिक में, आर्य, दास एंड दस्यु। तो आप वहां पे ये दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इन लेटर वैदिक पीरियड द डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ वंस वर्ण। इन ऋग्वेदिक टाइम्स द डिवीजन वाज ऑन दीज लाइन, आर्य, दास एंड दस्यु, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ विमेन। विमेन हैड पॉलिटिकल राइट्स, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन सभा एंड समिति, दे वर इन द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे वो चीज नहीं है। सोसाइटी में दे हैड राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर, दे हैड द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ओन करने का आइडिया क्या है, कम्युनल है, कि कम्युनिटी इज ओनिंग दी प्रॉपर्टी। तो इस क्योंकि ट्राइबल था सेटअप, तो इस तरीके का सवाल कुछ वहां पे है ही नहीं। रिचुअलिस्टिक राइट्स, सो वुमेन ऑल्सो हैड रिचुअलिस्टिक राइट, दे वर ऑल्सो सिटिंग इन दी sacrifices that were being performed. There is presence of female deities, example Usha, Aditi, etc. ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से करके आप ऋग्वेदिक लाइफ से उसको कंपेयर कर सकते हैं। When you have to write the conclusion, you can write that these factors led to discontent amongst the masses, which actually became the broader base for the acceptance of Buddhism and Jainism. ठीक है, तो आप इसको अगले पीरियड से लिंक कर सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये फिलोसॉफिकल जो नए आइडियाज आए उनके एक्सेप्टेंस में उन्होंने हेल्प किया। क्लियर है ये? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, व्हाट मेथड्स डिड मॉडरेट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? डिस्कस हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज फ्रीडम। अगेन देयर आर 2 points which you have to mention, 2 aspects which you have to discuss here. पहला क्या है, what methods did moderates employ during India's freedom struggle? तो पहले you will talk, इंट्रोडक्शन में आप क्या बात कर सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स जो हैं वो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, इस बारे में आप ये की टर्म्स आपके उसमें आने चाहिए, ठीक है, कि अर्ली नेशनलिस्ट्स आर कॉल्ड मॉडरेट्स, पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट।
ठीक है, ये 3 चीजें आपकी आएंगी। नीचे आप जब आएंगे तो आपका पहला एस्पेक्ट है कि क्या मेथड को एम्प्लॉय किया। तो वेरी फेमसली वी नो दैट 3 P's, petitions, prayers and propaganda. Petition में क्या कर रहे हैं, that they are asking for constitutional reforms. So they are giving petitions to the British government asking for constitutional reforms. That is one method that they are employing. Prayer, they are asking them कि भाई un-British rule मत करो, British rule कर लो, ठीक है। तो again they are praying the British in a way, they are not being strict. They are, so this is the method of begging you can say, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रेयर कह रहे हैं। प्रोपोगेंडा, so they are writing in the newspapers, they are spreading awareness amongst the masses, so that is the propaganda, ठीक है। तो ये आपके 3 इनके प्राइमरी मेथड्स हैं जिसको मॉडरेट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉर डूइंग व्हाट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। दीज आर द प्राइमरी मेथड्स। इसी को आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि पिटिशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, प्रेयर में आस्किंग ब्रिटिश टू बिकम मोर ब्रिटिश व्हाइल फॉर्मिंग इंडियाज पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया। प्रोपेगेंडा में यू कैन टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस, यू कैन टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वेरियस सभास टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। तो उसमें आप सब पॉइंट्स ऐसे करके लिख सकते हैं। Now when we talk about their contribution towards India's freedom, so see they have often been very much dismissed, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि ये तो प्रे कर रहे हैं, ये तो पिटिशन दे रहे हैं, तो इनका क्या ही इंपॉर्टेंस है। तो you will see that their contribution was often dismissed, but what we do need to understand that they have played a very important role in India's freedom struggle. What will be the points there? So they are of the first very important point that you have to write, they are offering a comprehensive economic critique of British colonialism. Okay, this is a, if you don't know the term, you should write this term down. Offering a comprehensive economic critique of British government or British policies. Offering a comprehensive economic critique of British policies, क्योंकि जो हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट होने वाला है वो इसी चीज पे बेस्ड होगा। So that is why this particular term is very important. तो क्या ऑफर किया? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल मूवमेंट इन द कमिंग टाइम्स, इट इज सोली गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन दिस आइडिया दैट ब्रिटिश हैव इकोनॉमिकली ड्रेन्ड इंडिया, दे डोंट डिजर्व टू रूल इंडिया। क्योंकि जब हम डोमिनियन स्टेटस की भी डिमांड कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, आपने इकोनॉमिकली हमको एक्सप्लॉइट किया है, सो ग्रांट अस द पॉलिटिकल स्टेटस टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर ourselves। हम शुरू में उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि निकलो यहां से, फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, तो इन्होंने सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन है इन ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। सेकेंड, दे स्टार्टेड अ पॉलिटिकल डिस्कशन ऑफ एंटी ब्रिटिश पॉलिसी, सो दैट इज देयर सेकेंड contribution. Third contribution, by making the masses aware. See, they are not very successful, but they are trying to make the masses aware. How? जब आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को जाके ये बोलें कि देखो ये ब्रिटिश हैं, ये परेशानीजनक इनकी हरकतें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं दे रहे हैं, जुडिशरी में पोजीशन नहीं दे रहे हैं, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द मासेस? बहुत छोटी क्लास है विच इज एजुकेटेड, जो कि इस चीज से इंपैक्ट होगी कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी। अगर हम 20th सेंचुरी की 19th 20th सेंचुरी की बात करें, हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड एनफ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स? नॉट एवरी, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी who is educated enough to get government jobs. If you have to make the masses part of the national movement, you have to tell them कि भाई आपका खाना छीन रहे हैं आपसे। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक में क्या है, इन्हीं 4 पॉइंट्स का बात किया है उन्होंने। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, their policy towards trade, policy towards industrial development, and fourth, construction of railways. So these are the 4 points that they are offering in reign of wealth theory.
सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में पहला लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, डायरेक्टली टारगेटिंग द पेजेंट्स, ट्रेड targeting the traders, industrial policy targeting the capitalist class as well as workers, construction of railways targeting everyone who is paying taxes, so their educated class will also come who is doing government jobs and paying the taxes. Okay, so by offering this comprehensive critique they are actually helping prepare a broader social base. Okay, they are the early ones to use press as a medium to connect to the masses, so that is another contribution. Of course they were writing in English language initially, but this is going to, so idea is there na, idea तो उन्होंने already use किया, वही idea को आगे हम broaden करेंगे. So in these ways they have contributed a lot in India's freedom. अगर हमको इसमें और points add करने हैं, so we can talk about the impact of their constitutional reforms की उनको असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको पोजीशन मिल रहा है, इंडियनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, पहले कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, फिर इंडियनाइजेशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम हुआ. सो दे स्टार्टेड ग्रांटिंग पोजीशंस टू इंडियंस एज वेल. दिस इज रिजल्ट ऑफ these people's constant petitions which they were giving to British government. So these are the points that you can write, and you can conclude that their policies and their critique of British colonialism helped in broadening the base of the national movement in the coming era. ठीक, क्लियर है? तो ये आपका 9वां क्वेश्चन है. 10वें का बात करेंगे तो रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया spanned across religions in the ancient past and represented the prevailing architectural expertise during this period. Examine. तो रॉक कट आर्किटेक्चर है पहली बात. बहुत सारे लोग भीमबेटका से शुरू कर देते हैं. भीमबेटका इज आर्ट. लोगों ने रॉक नहीं काट के बनाया था आर्किटेक्चर, वो नेचुरल केव्स थे जिसमें जाके पेंटिंग किया था. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड architecture. Here the question is about architecture. So rock cut architecture in India spanned across religions in ancient past. Ancient की बात कर रहे हैं, spanned across religions. Ancient में prominently क्या है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म. एक रेफरेंस आपको आजीविकास का मिलता है. ठीक है, प्रोमिनेंटली 3 रिलीजन्स है तो उनके बारे में बात करना है. That represented prevailing architectural expertise during this period. So first you have to go according to the chronology, and there you have to show how it is also addressing various philosophies which existed in terms of Hinduism, Buddhism and Jainism and how it represented the prevailing architectural expertise during this period. So what is the first rock cut? Which one is the first rock cut architecture in India? हाँ, लोमस ऋषिकेव. सांची बहुत आगे चले गए आप, 2nd सेंचुरी सी में पहुंच गए. गो टू मौर्यन पीरियड. सो वहां से हमको क्या मिल रहा है? लोमस ऋषि केव. सो यू कैन टॉक अबाउट द लोमस ऋषि केव. द फ्रंट गेट ऑफ द लोमस ऋषि केव विच इज वेरी हेविली कार्व्ड. उस समय के नॉर्म्स के हिसाब से हेविली कार्व्ड है. तो आप यहाँ पर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं that it was dedicated to आजीविकास. आजीविका को डेडिकेटेड था. मौर्यन लोमस ऋषि केव डेडिकेटेड टू आजीविकास. तो आपने बता दिया रिलीजियस अफिलिएशन, आपने टाइम बता दिया मौर्यन. तो एंशिएंट में हम चल रहे हैं. पहला वो है फ्रंटल गेट की आप बात कर सकते हैं, कार्व्ड विद द सीज ऑफ एलिफेंट्स एंड स्तूपस. तो आप वो पॉइंट वहां पे जब कार्व्ड विद elephants and stupas, when you will write that you are talking about architectural expertise prevailing during that time. ठीक है. उसके आगे अगर आपको बात करना है, आप क्या बात कर सकते हैं? You can talk about the Barhut स्तूप, you can talk about the सांची स्तूप. That is also rock cut architecture. ठीक है. Related to which religion? बुद्धिज्म. तो वहां पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसमें क्या है, हमारी जातक स्टोरीज, इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध that is depicted there. उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. Then you can, thank you, then you can give the example of
वेरियस केव्स फ्रॉम गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड में आप बात करेंगे कान्हेरी केव्स की, आप बात कर सकते हैं। कान्हेरी कहाँ है? महाराष्ट्र। कान्हेरी में आप महाराष्ट्र का बात करेंगे, एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट अजंता। अजंता केव्स अगेन रिलेटेड टू बुद्धिज्म। और एक्सपर्टीज में आपको यही लिखना है कि दे आर वेरी मार्वलसली डेकोरेटेड, बहुत इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं। स्टोरीज क्या है? जिस रिलीजन का है उसी से रिलेटेड स्टोरीज है। तो एग्जाम्पल में आपको वही चीज लिखना है। देन हाँ, अजंता का पूरा इंटीरियर का डिजाइन आप वहां पे कान्हेरी और अजंता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। देन कमिंग टू मध्य प्रदेश, वहां पे उदयगिरी केव्स हैं। उदयगिरी खंडगिरी यहाँ भी है और उदयगिरी केव्स आर देयर इन मध्य प्रदेश एज वेल, दैट इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म। तो वहां पे हमने क्लास में गुप्त पीरियड में एक दिखाया था विष्णु रेस्क्यूइंग भूदेवी, वराह अवतार ऑफ विष्णु, दैट इज डिपिक्टेड देयर। यू कैन यूज दैट एज योर एग्जाम्पल। देन उड़ीसा में जैनिज्म से कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स डेडिकेटेड टू जैनिज्म। द फेमस इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, दैट इज ऑल्सो present there. That can be your example in Jainism. ठीक है। Then again moving to the area of Maharashtra, तो क्या क्या हमने यहाँ पे किया? लोमस ऋषि से स्टार्ट किया हमने, लोमस ऋषि से बुद्धिज्म का हमने किया, ठीक है। Then we talked about बरहूत and सांची. Here you can also talk about भाजा, कार्ला। ये हम किस में पढ़ते हैं? सातवाहन पीरियड में पढ़ते हैं। वी हैव लुक्ड एट द आर्किटेक्चर, वेरियस चैत्यास एंड विहारस, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन भाजा एंड कार्ला। यू कैन टॉक अबाउट दैट, डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। क्रोनोलॉजिकली और आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी, डेडिकेटेड टू जैनिज्म, ठीक है। देन मूव फॉरवर्ड, सो उदयगिरी इन मध्य प्रदेश, यहां स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदुइज्म की, ठीक है। तो उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म व्हाट इज हैपनिंग? वी विल गो टू महाराष्ट्र, वी विल टॉक अबाउट कान्हेरी, कान्हेरी केव्स एंड अजंता। कान्हेरी एंड अजंता केव्स इन Maharashtra, that you will talk about in the context of Buddhism. Again moving forward, इसके आगे आप किसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसके आगे आप बात कर सकते हैं एलोरा के बारे में। एलोरा में हम केव्स की बात करें, डेडिकेटेड टू जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म। एलोरा में ही हम बात कर सकते हैं एलिफेंटा, राष्ट्रकूटस के टाइम में, दैट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म। So Shaivism, इसमें you can give the example of the very famous त्रिमूर्ति। एलिफेंटा केव में त्रिमूर्ति है ना, जो बहुत फेमस, हमने जब राष्ट्रकूट पढ़ा था तो हमने आपको उसमें अलग अलग शिव के फॉर्म्स को कैसे डिपिक्ट किया है वो दिखाया था। That will come here. When you are at Elephanta, you can also talk about the कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। अगेन यहाँ बात कर सकते हैं कि मोनोलिथ है, तो अगेन आर्किटेक्चरल expertise. This is also part of architecture dedicated to Hinduism. Then you can go to बादामी। बादामी में हमने चालुक्यस जब पढ़ा है तो बादामी में हमने क्या पढ़ा है? We talked about 4 cave temples. वो भी तो रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक से ही तो काट के बनाया है। तो केव टेम्पल्स इन बादामी ड्यूरिंग चालुक्यन पीरियड। So here what we find? We find 3 of the caves are dedicated to Hinduism, 1 is dedicated to Jainism. So that will also be the example of rock cut architecture. Temples will not be example of rock cut architecture, क्योंकि वो structural temples हो जाते हैं। तो ये हमारा cave temple rock cut architecture में आएगा। Go to Pallavas. Pallavas में हमने क्या बात किया? पंचरथ, पंचरथ अगेन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। हमने आपको जब पंचरथ दिखाया था तो हमने बताया था कि वो मोनोलिथ था जिससे उन्होंने 5 टेम्पल्स को कार्व किया है। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म। ग्रेट पेनेंस रिलीफ, ग्रेट पेनेंस रिलीफ
which is called Arjuna's penance as well as descent of Ganga. तो इसका जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं अगेन रिलेटेड टू हिंदुइज्म, एंड हियर अगेन यू कैन टॉक अबाउट द आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज, हाउ दे आर ट्रांसलेटिंग लिटरेचर इनटू आर्किटेक्चर, एंड यू कैन एंड योर आंसर हियर. तो आपने मौर्यन पीरियड से उठाए पल्लव पीरियड तक आपने आके पूरा बात कर लिया, आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है यहाँ. सीतना वसल ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, सीतना वसल इन तमिलनाडु. ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर. वो माइनर है, इवन इफ दैट इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड यू आर राइटिंग ऑल द मेजर एग्जाम्पल्स, so that is fine, but if you remember that's well and good, you can give that as an example as well. तो आप यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं, सीतना वसल फ्रॉम पांड्यास टाइम्स. इन्होंने बोला है रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक को कट करके जो आर्किटेक्चर बनाए, तो मेजरली हम केव्स के कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करते हैं. जब हम स्ट्रक्चर, जब हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टोन को कट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रीजन है कि हमने ये बोला कि टेम्पल्स इसमें नहीं डालने के लिए. ठीक है, हाँ ये मोनोलिथ्स हैं, तो जब मोनोलिथ्स का बात करेंगे तब हम रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करते हैं. जी पिलर्स आप मेंशन कर सकते हैं, मगर अगेन वो स्टोन में आ जाएगा. जब आप अशोका की बात करें तो रॉक नहीं हुआ ना, उसमें लोमस ऋषि ही आएगा. एंड पिलर्स आर नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, they are symbol of political authority, not religious authority. नहीं, अगेन मेगालिथिक आपका रिलीजियस नहीं है ना, कल्चरल है. तो मेगालिथ में आप क्या रिचुअलिस्टिक लिख सकते हैं पर्पस. तो सी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. आप इतना सारा जो प्रोमिनेंट है पहले उसको लिखेंगे ना, because this is the example of rock cut architecture which is giving you an insight into architectural expertise. तो अगर आप बहुत ऐसे माइनर चीजों को लिखने के चक्कर में अगर ये मेजर चीजें छोड़ देते हैं तो योर आंसर इज, द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आप 250 वर्ड्स में इसको ही लिखिए एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिट इन एवरीथिंग देयर. ठीक है, अगेन व्हाट दे हैव सेड हियर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज माइनर थिंग्स, look at the key term, spanned across religions. So you have to keep in mind कि हम religion की बात कर रहे हैं यहाँ पे. religion prominent क्या है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म. जब हम मेगालिथ्स की बात करें that is ritualistic practices, that is not pertaining to religion per se. Okay, तो की टर्म हमारा क्या है, हमको उसको देखते हुए अपने आंसर का कंटेंट डिसाइड करना है. ठीक है, इसमें हमको एग्जाम्पल्स देने हैं तो हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं. लोमस ऋषि में दैट फ्रंटल सीज एलिफेंट्स एंड स्तूपर्स, तो उससे आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज दिखाएंगे. बरहुत सांची स्टोरीज फ्रॉम बुद्धाज लाइफ, इवेंट्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड जातक, स्टोरीज बीइंग कार्व्ड हियर. भाजा कार्ला चैत्य एंड विहार. ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी स्टोरीज फ्रॉम Jain, from the life of various Tirthankaras that is being carved, that will be your example. Udayagiri Varaha avatar of Vishnu. यहाँ हमने क्या लिखा था, कान्हेरी, अगेन द सेम एग्जाम्पल जो आपने बरहुत सांची में दिया है. Coming to Ellora, again the same example, events from the life of Buddha and Jatak stories. Elephanta you can give the very famous example of Trimurti. Kailashnath, again events from the life of Shiva. Cave temples, so events from the life of Shiva as well as Vishnu, क्योंकि second cave में आपको विष्णु का भी वहां पे मिलता है. Here if you want to give an example you can write Nataraj. जो जैनिज्म को टेम्पल डेडिकेटेड है उसमें क्या है, डिपिक्शन ऑफ वेरियस तीर्थंकरस, सो दैट कैन बी योर एग्जाम्पल. पंचरथा, अगेन डिपिक्शन ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वेल एज ऑफ द किंग्स. जब हमने पंचरथ पढ़ाया था तो हमने बताया था कि नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, उनका भी डिपिक्शन आपको पंचरथ के वॉल्स पे देखने मिलता है. ग्रेट पेनेंस रिलीफ में हमारा क्या है एग्जाम्पल, डिसेंट ऑफ गैंगस, सो द पेनेंस ऑफ भगीरथ एंड पेनेंस ऑफ अर्जुन. तो किरार्त अर्जुनीय की जो कहानी है उसको वहां पे डिपिक्ट किया है. ठीक है, so these will be your examples which is going to
highlights the architectural expertise during this period. ठीक है. In conclusion, you can write that India has had a rich rock cut architectural heritage, which ये आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, which did span across all the religions, which reflected the architectural expertise of that period. ठीक है. So this is how you can end your answer. Is this clear? कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के कंटेंट में या कैसे लिखना है उसमें? अगर कोई डाउट है तो यू शुड आस्क हियर, क्योंकि बाद में फिर वक्त नहीं मिलेगा. जी हाँ, बुद्धिज्म क्या? अच्छा, बामयान बुद्ध. तो बामयान बुद्ध का क्या लिखना है? नहीं, वो रॉक कट का एग्जाम्पल है, मगर यहाँ हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मेनलैंड इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं. इंडियन सबकॉन्टिनेंट नहीं लिखा है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिखा होगा देन वी विल टॉक अबाउट द कल्चरल बाउंड्री. यहाँ इंडिया लिखा है, सो वी नीड टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्री. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी क्या है, इंडिया है या इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, तो हम उसके बेसिस पे अपना आंसर फ्रेम करेंगे ना. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, अनब्रिटिश. ओके. तो when Dadabhai Nauroji offered the economic critique of British policies, the book is Poverty and Un-British Rule in India. तो वो क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों का इनहेरेंट बिलीफ क्या है कि ब्रिटिश आर पीपल हु आर केपेबल ऑफ फ्रेमिंग पॉजिटिव पॉलिसीज. सो दे आर लुकिंग एट ब्रिटेन एंड दे आर लुकिंग एट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स देयर. तो उनको क्या है दिमाग में कि अगर वो उन पॉलिसीज को वहां फ्रेम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं फ्रेम कर रहे. तो वो ये चीज बोल रहे हैं कि इनमें लैक ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, इनका इंटेंट नहीं है. ठीक है, एक होता है कि इंसान में कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझ के उसके हिसाब से पॉलिसीज को फ्रेम कर सके, तो आप उसको उस चीज के लिए कॉल आउट करेंगे कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रूल. What these people are looking at, when these people are looking at Europe and when they are going to Britain, they are realizing that these people are competent enough to frame good policies for development. They are not doing it in India. तो वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रही हैं ब्रिटेन में, इंडिया में दे आर एक्टिंग अनब्रिटिश. ओके, so that is the meaning that they are competent to frame positive policies but they don't have the intent. ठीक है, anything else? क्लियर है सारी चीजें? चलो, आंसर्स आप लोगों को मिले अभी कुछ इवेल्युएट होके? So how did you score? 39. कितने में? 125 में 39. There is a lot of scope for improvement then. So I hope this helped. Point समझ में आए कि क्या चीजें लिखनी है क्या नहीं लिखनी. Were you able to relate it with the answer that you wrote? कि क्या चीज मिसिंग है उसमें, क्या क्या डालना है. So try to write it again and it will get better. Okay. So should we end it, the discussion? Okay. Chalo. Have a good day. Can you come sit there in the room? Because I'm not feeling well.
घोर अपमान।